The magnitude of differential magnetic field. Magnitude लेते हैं. The magnitude of differential magnetic field due to small element of current carrying conductor. This dV is the magnitude of differential magnetic field. The magnitude of differential magnetic field due to small element of current carrying conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. Is also directly proportional to the small element of current carrying conductor. Is also directly proportional to the sine of theta, where theta is angle between the small element of current carrying conductor and the point where the magnetic field is to be calculated, and inversely proportional to the square of distance between small element of current carrying conductor and the point where the magnetic field is to be calculated. So this is complete Biot's overview. The magnitude of differential magnetic field due to small element of current carrying conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. Is also directly proportional to the small element of a current carrying conductor. Is also directly proportional to the sine of theta, where theta is angle between. ये एक एंगल होता है, ये किसके बीच का एंगल होता है? where angle between DL, that is DL is a small element of current carrying conductor and the point where the magnetic field is to be calculated, and inversely proportional to the square of distance between small element of current carrying conductor and the point where the magnetic field is to be calculated. So this is complete Biot's overview. Now अब चलिए ध्यान दें, इधर सामने चलते हैं अभी. तो हम लोग ने एक स्मॉल एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया था. कंडक्टर से यहाँ से हम लोग ने I, that is current flowing through the conductor, और यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट हम लोग ने कंसीडर किया था जो इसका नाम दिया था हम लोग ने DL. So DL is a small element of current carrying conductor. Now we consider any point P. एक पॉइंट कोई भी कंसीडर करेंगे जिसपे हम मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो. सो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P का DL से कुछ तो भी डिस्टेंस होगा. सो दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. सो नाउ दिस इज योर कैपिटल R. जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया हुआ है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट से लिया हुआ है, इसलिए इसको नाम देंगे हम लोग A. तो मेरा D A के बीच में एक लेंथ हो जाएगी. सो दिस इज L इज अ लेंथ बिटवीन DL एंड द पॉइंट. एक पॉइंट हम लोग ने कंसीडर किया दैट इज A. क्लियर? तो आप देखेंगे यहाँ सो वी गेट द राइट एंगल ट्रायंगल, और जो ये थीटा होता है, ये थीटा ये एंगल होता है, द एंगल बिटवीन द स्मॉल एलिमेंट लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट of current carrying conductor and the point where the magnetic field is to be calculated. Clear? तो जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं, we are using constant, so dB is equals to यहाँ आ जाएगा mu naught, sorry डायरेक्ट हम लोग लेंगे यहाँ पे K, where K is a magnetic field constant. तो K dB is equals to K I dl sin theta divided by this is R squared. Where K is a magnetic field constant and the value of magnetic field constant, so that is K is equals to mu naught divided by 4 pi. अगेन म्यू नॉट का फिर से वैल्यू होता है, तो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू अगेन 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7. क्लियर? हाँ, इसका यूनिट होता है टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर. ठीक है, इसको और में हम लोग फिर से लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर. मैंने बताया था तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ फ्लक्स. तो ये टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर, सो इट्स अ वेबर पर एम्पियर इनटू मीटर. ये Weber per ampere into meter, so this is second SI unit, Weber per ampere into meter. So Tesla meter divided by ampere, again this is second SI unit. So that mu naught का वैल्यू कितना होता है 4 pi into 10 to the power -7. तो यहाँ मैं K की इसमें रख दूँ तो K कितना हो जाएगा यहाँ पे, this is 4 pi into 10 to the power -7 divided by again 4 pi, और यहाँ आएगा तेरा यूनिट टेस्ला मीटर divided by ampere, और this is Weber per ampere into meter. ठीक? हाँ, तो यहाँ दिस 4 by get cancel, what remains is 10 to the power -7. तो K का वैल्यू एक साइड कितना हो गया 1 into 10 to the power -7 टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर, और वेबर पर मीटर एम्पियर इनटू मीटर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ K, दिस इज 1 into 10 to the power -7 in our equation, so we get the final equation for dB. So what is dB? That is differential magnetic field, the magnitude of differential magnetic field. So dB is equals to आगे आपका this is, और क्या आएगा आपका K का वैल्यू कितना 1 into 10 to the power -7, मतलब आ गया I dl sin theta divided by R square into 10 to the power -7. This is the unit of magnetic field is Tesla.
So this is standard equation for a Biot-Savart law. ये एक standard equation बनी Biot-Savart law. Now this dB is what? This is a differential magnitude of differential magnetic field due to small element of current carrying conductor. Now listen very carefully. बहुत अच्छे सुनेंगे अभी. dB आपका मैग्नीट्यूड है. किस चीज का मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड है डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर. जो आपने स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ यहाँ पे, ये स्मॉल एलिमेंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज dB. बट दिस इज नॉट द कंप्लीट या टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. सो यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल magnetic field due to the conductor where I is a current flowing through the conductor. जब I flow होगा कंडक्टर में से तब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होगी. सो तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को कंप्लीटली सिर्फ P से डिनोट करेंगे. नाउ दिस इज dB is only due to the small element of current carrying conductor. ये dB आपका ये dB आपका डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड है. ये स्मॉल एलिमेंट के वजह से, बट स्मॉल एलिमेंट में ही करंट फ्लो नहीं हो रहा है, पूरे कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है. तो पूरे कंडक्टर में से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ B. दिस इज dB. dB इज ड्यू टू dl. अगर मैं यहां से अगर B का कैलकुलेशन कर दूं तो B का कैलकुलेशन मेरा क्या हो जाएगा? B का कैलकुलेशन हो जाएगा दिस इज अ कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. कंप्लीट magnetic field due to not a small element of current carrying conductor, complete magnetic field due to current carrying conductor. Clear? अब इसके सामने हम लोग चलते, चलिए ध्यान दीजिए अभी सभी लोग. अभी हम लोग यहां से डेरिवेशन सॉल्व करेंगे. क्लियर? हाँ, तो यहां तक तो ये बायोट-सावर्ट लॉ का बेसिक कांसेप्ट हो गया. अब बायोट-सावर्ट लॉ के बेसिक कांसेप्ट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. तो यहां से हमारी एक चीज चालू होती है, एक्सप्रेशन फॉर magnetic field due to long straight expression for magnetic field due to long straight current carrying conductor. अब मेरे को एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. एक लॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए उसमें. दैट इज लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. क्लियर? चलेगा अभी तक? तो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड मतलब मेरे को B का एक्सप्रेशन बनाना है. B का एक्सप्रेशन किसकी वजह से बनाना है? ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मेरे को कैलकुलेट करनी है, या उसका एक्सप्रेशन मेरे को यहां से बनाना है. ठीक है, चलिए तो थ्योरी मेरी वही रहेगी. कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने कंसीडर कर लिया. लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. अब मैं डायरेक्ट पूरे कंडक्टर में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए वी कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर. एक स्मॉल एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर का है, एंड दैट स्मॉल एलिमेंट इज योर D. मैग्नेटिक फील्ड B के लिए एक्सप्रेशन मेरे को बनाना है ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसलिए कंसीडर लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. तो कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट. एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसीडर करेंगे जिसका नाम होगा dl. सो दिस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज dl. और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे को बनानी है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मान के चलते कि P पे बनानी है. सो कंसीडर एनी पॉइंट P. कोई भी एक पॉइंट P कंसीडर करिए जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. सो कंसीडर एनी पॉइंट P व्हिच हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. और द dl और P के बीच का डिस्टेंस कितना लिया हम लोगों ने? r. नाउ वी टेक द अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया मैंने लेंथ ऑफ द कंडक्टर से, दैट इज अ कैपिटल R. Capital R means the perpendicular distance from the length of the conductor and the point where the magnetic field is to be calculated. Capital R आपका perpendicular distance है, कहां से? From the length of the conductor, कहां तक है? From the at the point where the magnetic field is to be calculated. It means that हम लोग को P पे magnetic field calculate करनी है.
वो P पे मैग्नेटिक फील्ड मैं कैलकुलेट कर दूं, उन सबको पूरा इंटीग्रेट करूंगा, सो वी गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. Clear? Now, according to the Biot-Savart law, what is Biot-Savart law? So that is dB is equals to dB की इक्वेशन क्या है? This is mu naught into I into dl sin theta divided by this is 4 pi r square. According to the Biot-Savart law, what is your Biot-Savart law? dB is equals to mu naught into I dl sin theta divided by 4 pi r square. This is the expression for the Biot-Savart law. Clear? अब ये expression हो गया Biot-Savart law का. तो ये मैग्नेटिक Biot-Savart law क्या कहता है कि डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर. ये डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है. Biot-Savart law क्या दे रहा है आपको? डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर. क्लियर? और फिर इसकी वजह से आइडियल sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये लॉ के हिसाब से हमारी इक्वेशन बनी. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने लॉ देखा हुआ है. So dV is equal to mu naught ideal sin theta divided by 4 pi into r square. So this is a differential magnetic field. Now what we want? A total magnetic field due to current carrying conductor. So total magnetic field is denoted by B and this is the integration of dV. Integration. अब लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना होगा हम लोग को नहीं पता, बट चालू कहां से होगा ये पता है. कहां से चालू होगा? जीरो से. खत्म कहां होगा नहीं पता. So start from 0 to infinity. Clear? अब देख, so this is B is a total magnetic field due to current carrying conductor and dB is a differential magnetic field due to small element of current carrying conductor. So total magnetic field is the integration of initial magnetic small magnetic field and the length of the conductor starts from 0. हम लोग को पता नहीं है कब तक चलेगा. It starts from 0 and it's inside. Clear? Now अब यहाँ पे ये B is equal to integration of dB है, तो अच्छे से देखेंगे. अभी यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ हम लोग लगाएंगे, फिर हम लोग dB का वैल्यू dB का इक्वेशन पुट करके हम लोग इसका सॉल्व करेंगे. So this is B is equal to integration of dB and it starts from 0 to infinity. जब एलिमेंट मेरा यहाँ पे है तो मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, बट जरूरी थोड़ी ना है कि मैग्नेटिक फील्ड से मैं यहाँ कैलकुलेट कर सकता हूँ. क्या मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर भी तो कैलकुलेट कर सकता हूँ. So we consider this is a lower half और उसके लिए और अपर अगर मैं लूं तो it is called as upper half. तो मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह बनती हुई चलेगी ना. अगर कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. यहाँ पर भी बनेगी, यहाँ पर भी बनेगी, तो लोअर हाफ के लिए भी बन रही है. और जब करंट अगर मैंने ऊपर एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया या पॉइंट मैंने इधर कंसीडर कर लिया तो वो अपर हाफ कहां जाएगा? सो लोअर हाफ एंड अपर हाफ. तो लोअर हाफ एंड अपर हाफ दोनों हाफ के लिए वी आर यूजिंग हियर दैट इज 2 फॉर बोथ लोअर हाफ एंड अपर हाफ. समझा 2 कहां से आया? dl जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, सो दिस इज इन द लोअर हाफ. ये लोअर हाफ के लिए, बट यहां से अपर हाफ भी तो होगा. सो फॉर अपर हाफ एंड लोअर हाफ दोनों हाफ के लिए वी आर यूजिंग. क्लियर? चलिए अब यहां से हम लोग dB का वैल्यू पुट करते हैं. ध्यान दीजिए सभी लोग. इधर अगेन सो दिस इज B is equal to this is 2 ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में. सो अगेन दिस इज 2 0. नाउ पुट द इक्वेशन ऑफ dB हियर. तो dB का इक्वेशन में पुट कर दिया यहाँ पे. नाउ दिस इज I dl sin theta divided by 4 pi r. क्लियर? हमारे रूल्स क्या कहते हैं? जो कांस्टेंट होगा इंटीग्रेशन के बाहर निकले. ठीक है? सुनो, व्हाट आर कांस्टेंट्स? दे कांस्टेंट्स क्या है मेरे पास में? नाउ अगेन दिस इज B is equals to 2 जैसे के वैसे रहेगा बाहर. म्यू नॉट आ गया बाहर. करंट बदलेगा क्या? नहीं. क्लियर? हाँ, ये देख. नाउ दिस इज dl एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट dl. तो dl इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा sin थीटा. ठीक है? अकॉर्डिंग टू dl थीटा भी आपका वही रहेगा. ठीक है? तो ये dl और थीटा हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर ही रखेंगे. तो दिस इज dl into sin थीटा. अगेन दिस इज r स्क्वायर. r is a point where the distance between the point where the magnetic field is calculated. तो ये dl, ये थीटा, ये r, it can be changed according to the position of the small elements. Clear? और ये यहाँ पे दिस इज 4 pi. तो 4 pi आ गया तेरा बाहर. Clear? So what remains in integration? Integration 0 to infinity. क्या बचा? dl I बाहर निकाल लिया. dl sin theta divided by r. Clear? हाँ, चलिए तो सामने चलते फिर से यहाँ पे. Now this 2 and this 4 get cancelled. Clear? So b तो क्या आ गया? This is mu naught into I divided by 2 pi integration 0 to infinity.
एंगल sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, सॉरी कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r, कैपिटल R डिवाइडेड बाय, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ sin थीटा। क्लियर? हां, अगेन फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम तो r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस r कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से एक इक्वेशन क्या बनी मेरी, r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस, हो गया यहां से। ठीक है, तो यहां से फिर से r का इक्वेशन बना लेता हूं, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। ये सारी चीजें बताने की जरूरत तो अभी है नहीं तुम लोग को। ठीक है, चलिए तो ऊपर वाला रिप्लेसमेंट देखिए, sin थीटा और r का रिप्लेसमेंट देखिए फिर से। नाउ अगेन b इज इक्वल टू अगेन दिस इज म्यू नॉट इनटू i डिवाइडेड बाय दिस इज 2 pi एज इट इज। नाउ दिस इज अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी। क्लियर? हां, dl जैसे कि वैसे sin थीटा कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r, कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r। नाउ अगेन दिस इज अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस r, होगा ऐसे। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, तो मैं अभी फिलहाल के लिए ये r स्क्वायर को जैसे को वैसे रखता हूं, क्योंकि r नीचे आ जाए तो r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये r स्क्वायर जैसे को वैसे रख लिया थोड़ी देर के लिए। क्लियर? हाँ चलिए देखिए फिर से। नाउ अगेन दिस इज b इक्वल्स टू दिस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी अगेन dl into r divided by r cube. This is r cube and this is r. This is under root of l square plus r square. Now again this is r and this is r cube. Replacement फिर से देखिए अच्छे से, b is equals to mu naught into I divided by this is 2 pi integration 0 to infinity. ठीक है, dl r। ठीक है, अच्छा ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये r इंटीग्रेशन के बाहर भी ले सकता हूं मैं अभी यहां पे, तो r इंटीग्रेशन के बाहर। नाउ अगेन दिस इज r क्यूब, अब देख r क्यूब है, ये r का इक्वेशन है, देखा भाई इधर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर में 3/2, पावर में कितना आ गया, देखो r क्यूब है ना, and the meaning of square is 1/2। क्लियर? सो इट्स व्हाट 3/2, कितना हो गया ये। हाँ चलो, अभी आपका इंटीग्रेशन चल रहा है क्या, इंटीग्रेशन चल रहा है क्या, नहीं, ओके। तो आप के लिए ध्यान रखिए l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और इसके पावर में 3/2 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान में रखना है इसको इतना। अब ये कैसे आता है, कहां से आता है, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में। नाउ सो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आपका चलेगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहां से आया हुआ है। तो आप अभी के लिए थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dl l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर में अगर 3/2 है, सो इट्स इंटीग्रेशन इज 1/r स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, 1/r स्क्वायर। नाउ अब ये पूरी जगह पे मैं 1/r स्क्वायर पुट कर देता हूं, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। क्लियर? सो अगेन दिस इज और इसका पूरा का इंटीग्रेशन r स्क्वायर, ऊपर वाला r और नीचे वाला r कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इट रिमेंस, सो दैट इज b इज इक्वल्स टू mu naught into I divided by 2 pi capital R. So this is the magnetic field due to current carrying conductor. And the magnetic field due to current carrying conductor, which is calculated by Biot-Savart law, is exactly a Ampere circuit law. This is Ampere circuit law. एम्पियर सर्किट लॉ जो इक्वेशन बताता है वो इक्वेशन बायोट-सावर्ट लॉ से क्लियर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज नॉट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? उम्मीद करता हूं सब समझ में आ गया यहां से। ठीक है, डबल रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, देख लो वर्ड से।